जिन लोगों की कोई गलती नहीं है वो लोग मरते हैं। वॉर होता है दो सेनाओं के बीच में, और अगर एम्स के डेटाबेस पे चाइना ने हमारे अटैक किया था रिपोर्ट्स के अनुसार, सो जो हमारे लोगों का हेल्थ डाटा है वो उनके पास चले गया। तो ये हमारे लिए बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है। अगर हमारे देश के लोगों का हेल्थ डाटा हमारे एडवर्सरी के पास जा रहा है तो वो कोई भी बायोलॉजिकल वेपन क्रिएट करके हमारे देश में अशांति फैला सकते हैं। से टुडे we all Gen Zs or we all people are connected through each other through Instagram. So most of our talking happens through chatting, and we usually chat sitting in the corner of the room, and our parents, grandparents, they sit alone in the room. Why? Because it is because of digital divide, because they don't know how to chat, they don't know how to use social media, and we over know how to use social media. So it creates a gap that we are here over knowing about social media, they are here not knowing even a single thing about social media. Hello everyone, I hope you are fantastic there. Today with me we have someone special, and she is Mahi Sharma, and person of the day. She secured All India rank 106 and the very first or second attempt. She is a very hard working person. This is a kind of proved one, but kind of academic spark which is very rare in the successful candidates, and I am as a teacher able to identify it, and I could identify the same thing in her, and that is why I requested her that आप अपने जो न्यू कमर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके एथिक्स के पेपर को लेके और भी कई सारे टॉपिक्स है उसको लेके आप हेल्प करो. देन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन वी जीरो डाउन टू दिस बुक, राइट. ये एथिक्स की बुक है, कई सारे बच्चों ने खरीद ली होगी, कई सारे लेंगे इस चीज़ को. I am the author, and Athar Amir, 2016 batch IAS officer rank 2 is co-author of it, and she will be here to discuss the paper and the kind of connect between the book content as well as the usage of it in the current paper as well as the future topics. So Mahi, I will request do your level best to help these guys and connect करने की कोशिश करो. So guys, she is having good academic spark, and I will request you to see full video, the kind of content she is giving, because I was able to hear it. I was not able to expect कि ये इतना ग्राउंड से कनेक्ट कर पाएंगी, बट इन्होंने जिस हिसाब से जो ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट का एग्जाम्पल है, डे टू डे की जो हैपनिंग्स हैं, तो ये बहुत रेयर होता है, वो हम टीचर्स कर पाते हैं उस चीज़ को, दैट टू आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. But she was able to do it, so which is very good. That is why I chose her कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे. तो भाई स्टेज इज ऑल योर्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आप हेल्प करो. So first of all, good afternoon to everyone, and I would like to thank Nitin sir for such a short and sweet introduction of mine. So today we are going to discuss ethics paper 2025. Though it was ऐसा बोला जा रहा था कि इस बार का जो एथिक्स का पेपर है थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड जाके आया है, बट व्हेन वी विल डिस्कस इट विल फाइंड कि बहुत जो जनरल और ट्रेडिशनल पैटर्न है आज तक के एथिक्स के पेपर का, इस बार के पेपर ने भी वही पैटर्न फॉलो किया है. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को डिकोड करें और किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड समझें, एंड देन हाउ टू आंसर इट इन द गिवन वर्ड लिमिट एज वेल एज द गिवन टाइम लिमिट of the paper. So without wasting much time, we'll directly delve into the ethics paper 2025. So first of all, we'll see, before discussing the questions of the paper, we'll see the basics of answer writing. In just 5 to 10 minutes we'll understand what are the basic factors that should be kept in mind while writing an answer to the question, especially in UPSC CSE. So basics of answer writing is that usually it is said we must follow IBC model. Now what is IBC model? I stands for introduction, B stands for body, and C stands for conclusion. Ideally an answer should have
ऑल दीज 3 पार्ट्स इन इट, ये तीनों पार्ट जब एक आंसर में आएंगे तभी एक आंसर होल या कंप्लीट लगेगा. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Introduction is the initial part of the answer where we introduce our answer, which contains the content which is somehow related to the question. So it must be 2 to 3 lines or 20 to 30 words. Keeping in mind कि 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमें 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है एंड 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है. सो द इंट्रोडक्शन शुड बी ईदर 2 to 3 लाइन्स और 20 to 30 वर्ड्स. इंट्रोडक्शन में हमेशा वही चीज़ कंटेन होनी चाहिए जो क्वेश्चन में पूछी भी है या उससे रिलेटेड चीज़ है. नाउ बॉडी addresses the actual demand of the question. So body is the longest part of the answer where it must contain 90 to 100 words. And if it is 250 words question or 15 marker question, the body should have at least 180 to 200 words. देन कम्स द कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स हम जब आंसर को ख़त्म करेंगे या समअप करेंगे. सो कंक्लूजन शुड बी कि हमने पूरे आंसर में लिखा क्या है उसको हम बस समअप कर रहे हैं, या हम कोई पॉजिटिव चीज़ बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, या हम पॉजिटिव नोट पर एंड कर सकते हैं. तो यूजुअली कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अगेन इट हैज़ टू बी 2 to 3 लाइन्स और 20 to 30 words, and mostly it has to be positive except for the fact if any negative question is asked, but उसमें भी usually हमको positive note पे ही end करना है conclusion. So this is the basics of answer writing कि an ideal answer should have all these 3 parts. अब इन 3 parts को हम कैसे apply करेंगे हमारे answers में, वो हम हमारे आगे के जो answers हम जैसे जैसे questions discuss करेंगे we'll see in that. So the first question of 2025 ethics paper is, in the present digital age, social media has revolutionized our ways of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. So firstly, we'll try to find out what are the keywords in the question. In the present digital age, social media. So social media has revolutionized our ways of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in these regard. So question is saying कि आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को बहुत रिवोल्यूशनाइज और बहुत ईजी बना दिया है. हाउएवर इसके साथ साथ एक ये भी नुकसान है कि सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस खड़े हो गए हैं. सो इट इज़ अगेन एंड डायरेक्टली आस्किंग डिस्क्राइब द की एथिकल डायलेमाज इन दिस रिगार्ड. सो व्हाट शुड बी रिटन इन अवर बॉडी, that what are the ethical issues and challenges created by social media, as well as what are the key ethical dilemmas in that. Ethical dilemma is the word जिसका मतलब होता है कि दो सिचुएशन आपको दोनों ही थोड़ी थोड़ी सही लग रही है और दोनों ही थोड़ी थोड़ी गलत है. अब इसमें से आपको सिर्फ एक सिचुएशन चूज़ करना है. अगर आप एक सिचुएशन चूज़ करोगे तो यू विल ऑलवेज फील कि दूसरा वाई आर वी नॉट चूजिंग द सेकेंड, और अगर आपने दूसरा चूज़ करा तो यू विल ऑलवेज फील कि पहला भी सही था चूज़ करने के लिए. सो वी नीड टू एड्रेस द एथिकल इशूज, चैलेंजेस एंड एथिकल डिलेमास क्रिएटेड बाय सोशल मीडिया. अब नाउ हम इसको IBC पैटर्न में देखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो ये हमारी जो दो लाइन है ये हमारी हो गई इंट्रोडक्शन की. अब यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन लिया है. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. मुझे ऐसा ठीक लगा कि सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो आई शुड इंट्रोड्यूस माई आंसर राइटिंग अबाउट सोशल मीडिया. अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया के बारे में, आप वो चीज़ें लिख सकते हो. आप इंट्रोडक्शन में कोई
डाटा दे सकते हो, सोशल मीडिया यूज़र्स कितने बढ़ रहे हैं ये चीज़ बता सकते हो, या एक जनरल कोई भी कोट सोशल मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप दे सकते हो. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ पर्सनल चॉइस कि हमें आंसर कैसे स्टार्ट करना है. यहाँ पर आई हैव रिटन इन टूडेज एज सोशल मीडिया इज द ब्रीथ ऑफ द इंटरनेट connecting people from farthest corners of the world. So breath of the internet connecting people from the farthest corners of the world is again and directly reflecting what is actually said in the question ki it has revolutionized our way of communication. Means through this introduction I am saying that I have understood your question, that yes, social media is the breath of the internet connecting people from farthest corners of the world. So here in introduction we have to show that yeah, we have understood the demand of the question, that what the question wants to ask, be it for self development, telehealth, religious communication, finding partners for life, etc. Now in this sentence I have given the usage of the social media also. मैंने पहले ये बता दिया, yes, social media is connecting people. किस तरह से कनेक्ट कर रहा है, किन चीज़ों के लिए कनेक्ट कर रहा है, मतलब यूजेस क्या है सोशल मीडिया के लिए. बीट सेल्फ डेवलपमेंट, हम एक्सरसाइज पैटर्न्स देखते हैं सोशल मीडिया से. टेली हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है. रिलीजियस कम्युनिकेशन से यहाँ मतलब है हम यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड के इस कॉर्नर में बैठे बैठे बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस की हम लाइव टेलीकास्ट, वहाँ पे जो भी प्रोसेसेस हो रही है लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. सो वी डोंट नीड टू गो देयर. फाइंडिंग पार्टनर्स फॉर लाइफ, मैट्रिमोनियल एप्स चल रहे हैं इसमें. सो आई हैव गिवन द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल एज व्हाट इज द main element which is asked in the question, that social media is connecting people from around the world. Now the main demand is that several ethical issues, challenges and ethical dilemmas. So it is the body of the answer. Key ethical dilemmas which social media creates. First is the privacy versus data security. Privacy means it is my right ki if there is sensitive information about me, it should be kept private. It is my fundamental right. Right to privacy, Supreme Court, Puttaswamy judgment. Now, if I see something on my Instagram, say it is very sensitive thing, if I see, you will feel आपकी feed में वही बार बार आ रहा है. So where is my privacy? If I am seeing something about for example, if I am finding good shoe company on Google. अब हम कोई सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म ओपन करते तो हमें उसमें शू एड्स आने लग जाएंगे. सो वेयर इज माई प्राइवेसी? सो प्राइवेसी वर्सेज डाटा सिक्योरिटी, बिकॉज प्राइवेसी इज माई फंडामेंटल राइट एंड दिस सोशल मीडिया इज अब्रीजिंग माई फंडामेंटल राइट्स. सो वेयर इज द डाटा सिक्योरिटी? एम आई सिक्योर digitally or is my data secure digitally? This is the main question mark. और इसका बहुत बड़ा उदाहरण था कैम्ब्रिज एनालिटिका केस जो हुआ था, उसमें हमारी पर्सनल डाटा को यूज़ करके पॉलिटिकली इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करना या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रमोट करने का कोशिश की गई थी कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में. सो हियर की वेयर इज माई प्राइवेसी? नाउ द सेकेंड की एथिकल डायलेमा इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन versus hate speech. Freedom of expression is again my fundamental right under Article 19. But now up to which level I can express? For example, if I open my Facebook account and I write particular X community has done this in very harsh language. So is it actually freedom of speech or now it has become hate speech? Because as of now we don't have any particular definition of hate speech. What can be hate speech? Because if a person is saying me a particular word, I may not feel bad about it, but the person standing next to me can feel that this word is very bad. So it is how we receive it. So the hate speech is to be determined or to be defined at the receiving end. So particularly we don't have any particular definition with it, what does a hate speech consist of. So up to which level do we have freedom of expression and after which it will become a hate speech? Because of this we see many communal disharmony in our country.
communal disharmony, if it happens, it disturbs the peace of the society. हेट स्पीच कैन बी, मानहानि के केस होते हैं वेयर इंसल्टिंग अ पर्सन पब्लिकली, इंसल्टिंग पब्लिकली. Now, the third ethical dilemma is profit versus social responsibility. As an individual, as a citizen of India, what are my social responsibilities? What are my civic responsibilities? For example, I am doing vlogging, I am creating such content which is socially very degradable, which is socially not acceptable, but it is gaining views and giving me profit. So should I continue to show such things on social media, or should I actually care about my social responsibility? For example, what if I film a child abusing, and if it is giving me profit and views on social media, but it is not my it is my social responsibility to stop such things, not to promote such things. So the third key ethical dilemma is profit versus social responsibility. Fourth ethical dilemma is equality versus digital divide. When social media is spreading very fast, so we, the people of our age, especially Gen Zs or people of today's age, are actually they are comfortable with social media and all these digital equipments. But what about our parents? What about our grandparents? They are not equally comfortable with social media thing. So there is a digital divide in our country where social media is comfortable for young generation but not comfortable for old generation. Say today we all Gen Zs or we all people are connected through each other through Instagram. So most of our talking happens through chatting, and we usually chat sitting in the corner of the room, and our parents, grandparents, they sit alone in the room. Why? Because it is because of digital divide. Because they don't know how to chat, they don't know how to use social media, and we over know how to use social media. So it creates a gap that we are here over knowing about social media, they are here not knowing even a single thing about social media. So it creates a gap. So what if we who over know can bring down our knowledge, and we can sit with grandparents and our parents and talk, and what if we can teach them how to use social media so that they can use their free time in interacting people on social media. So we have to bridge down this gap. Fifth key ethical dilemma is authenticity versus manipulation. Say for example, I create my social media page as a health blogger or gym blogger. I have never shown my physique, I have never shown my face, and I always post things like in breakfast you should take X dish to reduce the weight, or in breakfast you should take this particular dish to gain weight. But I have never shown my physiques. Maybe that I am 80 or 90 kilo overweight and I am blogging things like how to reduce weight. So where is the authenticity in, like, how I am manipulating people? I don't know what is the right thing to do to lose weight, and I myself is 80 to 90 kilo, and I am telling people that do this thing to lose your weight. So I am manipulating people. So where is the authenticity? क्या सोशल मीडिया ने आके मुझे वेरीफाई किया कि मैं एक हेल्थ ब्लॉगर हूँ? क्या मेरे पास कोई हेल्थ की डिग्री है कि हाँ मैं जो बोलूँगी वो सही है, ये खाने से आपका पर्टिकुलर डायबिटीज़ कम होगा, ये खाने से आपका बीपी कंट्रोल में आएगा? नो, सोशल मीडिया हैज़ नॉट वेरीफाइड मी. सो मैं ऐसे, मान लीजिए मैंने कल से कोई टेलीमेडिसिन का पेज खोल लिया, एंड आई एम सेलिंग माई मेडिसिन ओवर दैट पेज कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन खाने से आपको ये पर्टिकुलर डिसीज से रिलीफ मिलेगा. बट वेयर इज माई अकाउंटेबिलिटी? Who has come to verify me and check me? So here I am manipulating people. So this is the fifth key ethical dilemma. Sixth is the autonomy versus algorithm control. We can relate it to the privacy versus data security. Autonomy versus algorithmic control, I have already explained that for example, if I have searched particular thing
ऑन माई गूगल से मुझे शूज़ खरीदना है, मैंने शूज़ के बारे में देखा, देन ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स व्हेन इफ़ आई ओपन इट दे विल बी शोइंग लाइक कि शू एड्स आने लग जाएंगे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में. सो वेर इज़ माई ऑटोनॉमी, दे आर कंट्रोलिंग माई एल्गोरिदम. इफ आई लाइक पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर पोस्ट, दे विल सेंड मी पोस्ट ऑफ दैट नेचर ओनली. Seventh key ethical dilemma is accountability versus anonymity. We can relate it to authenticity versus manipulation, that I am anonymous person posting certain things. Where is my accountability? Who is there to question me? Who is there to check me? If I say ये particular चीज़ खाने से आपका बीपी कंट्रोल होगा, नो वन नोज कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, और मान लीजिए वो खाने से उस पर्सन का बीपी और ज़्यादा बढ़ गया, अनलकीली इफ ही और शी डाइज, सो हु इज देयर टू क्वेश्चन मी कि मैंने किस बेसिस पर उसको वो दवाई बताई. दिस इज द थिंग. 8th इज सेल्फ डेवलपमेंट वर्सेस सोशल वैलिडेशन एंड साइबर बुलिंग. ये आजकल का बहुत बड़ा टेंशन है. व्हाट कि हम दुनिया के ट्रेंड को देखकर हम उस ट्रेंड में जुड़ना चाहते ताकि डिजिटली लोग हमें वैलिडेट करें. इसको सीधी भाषा में ये बोलेंगे, लाइक्स पाने के लिए तैयार होके या लाइक्स और कमेंट्स के लिए, डिजिटल वैलिडेशन के लिए वी पोस्ट आवर फोटोज. एंड फॉर एग्जांपल इफ वी डोंट गेट द एक्सपेक्टेड डिजिटल वैलिडेशन, मुझे पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइक्स चाहिए इस फोटो पे बट वो नहीं आए, सो आई विल गेट टेंशन. और ये सारी चीज़ें हैं जिससे हाइपर टेंशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग सुसाइड रेट्स. वाई? बिकॉज साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल के ज़माने में, बट बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, I am very thin. If I post my photo on social media, people will start commenting about my body shape, that you are very thin or something, eat this thing to gain weight, this thing. So cyberbullying, trolling, body shaming, it has just become a new normal. So इससे जो व्यक्ति है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वो डिप्रेशन की ओर जाता है, हाइपर टेंशन इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में हाइपर टेंशन के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग सुसाइड्स बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम इस सोसाइटी के लिए फिट नहीं हैं. और एंड स्पेशली अमॉन्ग टीनेजर्स, बिकॉज टीनेजर्स वांट डिजिटल वैलिडेशन, और इसी के वजह से कॉन्स्पिकस कंजम्पशन भी हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत ट्रेंड में है आईफोन खरीदते हैं लोग, वीडियो पोस्ट करते हैं. मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है जो मुझे सारी सर्विसेज फ़ोन की दे रहा है, बीट कॉलिंग हो गया या जितना भी स्टोरेज सब कुछ, बट नहीं, ट्रेंड चल रहा है कि आईफोन खरीदना है, तो फ़ोन होते हुए भी आई विल इन्वेस्ट माई जितना भी 1 to 2 लाख रुपीज़ का मनी है इन आईफोन. तो ये कंस्पिकस कंजम्पशन हो गया कि फ़ोन होते हुए भी मैंने जस्ट ट्रेंड के लिए एक नई चीज़ खरीदी, जो मैं पैसा कहीं और रैशनली इन्वेस्ट कर सकती थी, वो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया. सो इट इज़ कंस्पिकस कंजम्पशन. पर्टिकुलर ट्रेंड की ड्रेस अगर चल रही है सोशल मीडिया पे, तो वी टेंड टू बाय दैट ड्रेस एंड देन पोस्ट आवर फोटोज एंड पिक्चर्स. सो इट इनकरेजेस कंस्पिकस कंजम्पशन. अनदर की एथिकल डिलेमा इज मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस फेक न्यूज़, जैसा हमें मिल रहा था कोविड-19 में. Who is there to validate our news? Who is there to validate the information? ये स्पेशली इलेक्शन टाइमिंग पे भी बहुत होता है. मिस इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोविड का टाइम चल रहा है मान लीजिए, और मैंने अचानक से लिख दिया इस पर्टिकुलर विलेज में इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल की डेथ एक दिन में कोविड की वजह से हो गई, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. अब जैसे ही ये न्यूज़ फैलेगी उस विलेज में एकदम हड़कंप मच जाएगा, लोग पैनिक हो जाएंगे. सो ये मिस इन्फॉर्मेशन है. देयर इज़ नो वन टू चेक इट कि मेरा जो फैक्चुअल बेसिस में दे रही हूँ वो सही है भी या नहीं है. सो मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस फेक न्यूज़, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से हड़कंप मचता है, लोग पैनिक होते हैं एंड मास मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. अनदर इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड्स. मान लीजिए आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अपना चला रहे हैं, एकदम से कोई भी ऐड आया 10 दिन में पैसा डबल, और बहुत सारे उसमें लोगों के वीडियोज़ हैं कि मान लीजिए लोग अपने वैलिडेट कर रहे हैं उस चीज़ को, ये वीडियोस डाल के कि हाँ हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था और हमारा पैसा डबल हो गया है, तो आप भी शायद उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे. जैसे सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं कि बहुत इजी तरह से आप लोन ले सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो वो आपको वैसे लोन दे देते हैं और देन आपको परेशान करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर करके. सो दीज आर द फाइनेंशियल फ्रॉड्स. नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत इसमें आते हैं एड्स, सो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत होते हैं. 11 इज़ AI वाला थिंग, AI इंड्यूस्ड पोर्नोग्राफी. मान लीजिए कोई भी हम अपना
फोटो पोस्ट करते हैं, नाउ एनीवन कैन टेक आवर फोटो फ्रॉम दैट पिक्चर एंड उसको किसी पोर्नोग्राफिक इमेज पे अगर एआई के थ्रू सेट कर देते हैं, तो ये जो चीज़ है एआई इंड्यूस पोर्नोग्राफी से लोगों का जीवन खराब हो सकता है, और ये बहुत बड़ा एक की एथिकल डायलेमा है एआई इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस वाला, और व्हाट आर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर योर सोशल लिमिटेशंस. सो दिस विल बिकम द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन कि जो उसका मेन उसने पूछा है व्हाट आर द एथिकल डिलेमा. सो दिस आर द एथिकल डिलेमाज ऑफ द सोशल मीडिया. अब नाउ एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने पूरा आईबीसी पैटर्न फॉलो किया. नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्टली बॉडी देखेंगे. सो इसमें मैंने कंक्लूजन भी दे दिया है. अब ये कंक्लूजन आपका अलग भी हो सकता है, बट मैंने दिया है सोशल मीडिया इज अ डुअल एज, कि सोशल मीडिया इज अ डुअल एज स्वॉर्ड. डुअल एज स्वॉर्ड मतलब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है. अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कौन सा तरफ ज़्यादा यूज़ करते हैं. It is a dual-edged sword, collaborative governance. यहाँ पे I have given an idea कि how to control this menace which is there due to social media. हमें गवर्नेंस सिस्टम या सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें लॉज या रूल्स लाने पड़ेंगे, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा सोशल मीडिया का जो यूजेज है, एंड बैलेंस इनोवेशन एंड ह्यूमन डिग्निटी. मतलब इनोवेशन इज एआई जो हमने पहले बात करी, एंड ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन प्राइवेसी एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस जैसे हमें अवेयर करना पड़ेगा हमारे नए टीनेजर्स को कि डिजिटल वैलिडेशन कुछ नहीं होता है, फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट. हमें अवेयर करना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रॉड से, हमें अवेयर करना पड़ेगा द इल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मच सोशल मीडिया. सो हियर आई हैव गिवन दिस or we can discuss these things in the conclusion that a dual-edged sword, and it depends on the people who are using it, that how to use it. We need a collaborative governance and regulations to regulate the usage of social media, and many countries like China, union like EU, they have rules and regulations on social media usage, and we need to balance innovation ताकि ऐसा ना हो कि हम इतने टफ रूल्स ले आए कि हमारा इनोवेशन हैम्पर हो जाए. So we need to balance the innovation as well as the human dignity and the social responsibility, and we need to make people aware that how to use social media and what are the limits up to which social media usage is okay. So our second question is, constitutional morality is not a natural sentiment, is not a natural sentiment but a product of civil education, and adherence to rule of law. Examine the significance of constitutional morality for public servants, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. So these are the keywords of this question कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, मतलब जन्म लेने से ही हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं आ जाती है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज डेवलप्ड एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ. जो रूल्स हम देखते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, उन रूल्स को देखकर उनके अंडर रहकर साथ ही सिविल एजुकेशन पाकर हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जन्मजात नहीं होती है, ये स्टेटमेंट का मतलब है. फिर अब वो पूछ रहे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स. यानी पब्लिक सर्विस में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है. हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग इट इन गुड गवर्नेंस, अच्छे से गवर्नेंस करने में, साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है. सो ये मेन हमारा बॉडी ऑफ द क्वेश्चन रहेगा कि एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डील the first statement of the question, which is saying that constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherence to rule of law.
सो हमारा हेडिंग हमने नॉर्मल वर्ड्स में दिया है, एज ए प्रोडक्ट हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड रूल ऑफ लॉ, जिसके कुछ पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कम्स फ्रॉम मोरल सोशलाइजेशन, एनिमल्स वर्सेस ह्यूमंस। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सिर्फ जन्म लेने से ही आ जाती है एक नेचुरल सेंटिमेंट, जैसे नेचुरल सेंटिमेंट होता है काइंडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ऐसा ही एक नेचुरल सेंटिमेंट होता तो वह एनिमल्स में भी होता। एनिमल्स भी ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करते, बट नहीं, ट्रैफिक सिग्नल्स सिर्फ हम फॉलो करते। क्यों? क्योंकि हमें वो रूल ऑफ लॉ में लिखा हुआ है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है ना। और सिविल एजुकेशन में हमें समझाया गया है कि यू नीड टू फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। तो मोरल सोशलाइजेशन ह्यूमंस का होता है, इसीलिए ह्यूमंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती है और एनिमल्स में नहीं होती है। एनिमल्स में जो नेचुरल सेंटिमेंट्स है वो क्या होता है, गुस्से का होगा, शायद वो कभी हंसेंगे, शायद हमें तो उनके ठीक से नेचुरल सेंटिमेंट्स भी नहीं पता, बट वी हैवंट सीन एनी ऑफ द एनिमल्स फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड इज़ द सिविक एजुकेशन, जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं, उससे हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और बूस्ट होती है। फॉर एग्जांपल वोट देना हमारा अधिकार है, ये सबको पता है, बट फिर भी हमारे यहाँ कंट्री में जनरल इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज 60 to 70% के बीच रहता है। तो जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो स्वीप प्रोग्राम चलाता है। स्वीप प्रोग्राम है बेसिकली वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रैक्टिस में वोटर्स को बढ़ावा देना, इनकरेजमेंट देना और वोटर एजुकेशन को प्रमोट करना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा प्रोग्राम चलाता है जिसमें वोटर एजुकेशन दी जाती है कि आपके अधिकार क्या है, आपको वोट्स कैसे देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो धीरे धीरे इसके ज़रिए हमारा वोटिंग परसेंटेज हर जनरल इलेक्शन में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। सो सिविक एजुकेशन का, क्योंकि वोटिंग इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, तो ये सिविक एजुकेशन, जो सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स है, उसके थ्रू हमारे अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरलिटी टू वोट है वो बूस्ट हो रही है। सो अगेन दिस पॉइंट जस्टिफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिविक एजुकेशन। थर्ड इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कंडक्ट। लीगल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कंडक्ट मीन्स एथिकल या कॉन्स्टिट्यूशनली एथिकल कंडक्ट वी विल से हियर। अब यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर लॉ का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। एक एक्ट है हमारे देश में, इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। मान लीजिए तिरंगा है हमारे सामने और कोई भी उसको इंसल्ट करता है, तो इस लॉ के अंदर ही और शी इज़ पनिशेबल। अब अगर ये लॉ नहीं होता तो तिरंगे को एक इंसान डिसरिस्पेक्ट करता, उसको देखकर 4 और लोग डिसरिस्पेक्ट करते, उसको देखकर 40 और लोग डिसरिस्पेक्ट करते, विच इज़ अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इंसल्टिंग अवर ओन नेशनल फ्लैग इज against constitutional morality because constitution says that you should respect the symbols of national honor। अब अगर यहाँ पर ये लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डिग्रेड होती। सो अगेन दिस स्टेटमेंट जस्टिफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ because here we have this law in the country। Fourth statement is judicial intervention. Example, we'll understand it from Vishakha Guidelines and Navtej Singh Johar case. It is our constitutional morality to respect women. It is our constitutional morality to give everyone their free will, to give everyone their chance to enjoy their life, and equity all comes under constitutional morality. बट जब तक विशाखा गाइडलाइंस नहीं थी या जब तक विमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस वाला एक्ट नहीं था, तब तक वर्क प्लेस पे विमेन के साथ हैरेसमेंट होता भी था। तो पीपल वर नॉट पनिशेबल बिकॉज हमारे पास कोई एक्ट नहीं था जिसके अंदर हम सुदृढ़ तरीके से उन लोगों को पनिश करें। IPC की दूसरी धाराओं में हम भले ही करते थे, बट इट वॉज वेरी वेग एंड कन्फ्यूजिंग। सो
नेचुरल सेंटिमेंट नहीं था, रूल ऑफ लॉ यानी जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशरी ने हमें रास्ता दिखाया कि आपको ऐसा करना है ताकि विमेन के रिस्पेक्ट हो वर्क प्लेस पे भी, और वो फ्रीली अपना काम कर सके और इक्वल स्टेटस पा सके मैन के। तो जुडिशरी ने हमें रास्ता दिखाया, सिविल एजुकेशन एंड अडेयरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के वजह से हमें विमेन का रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस, जो विच इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो रूल ऑफ लॉ के थ्रू आया है। नवतीत सिंह जोहर केस इज रिलेटेड टू LGBTI कम्युनिटी टू गिव देम फ्री विल कि, और टू गिव देम इंडिपेंडेंस एंड उनको इक्वली ट्रीट करे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यही कहती है कि इच जेंडर, इच ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सो इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो इस केस के जरिए जुडिशरी ने हमें रास्ता दिखाया, विच इज़ वी कैन से विच कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ, कि हर ह्यूमन को इक्वल ट्रीटमेंट का अधिकार है। सो दीज 4 स्टेटमेंट्स प्रूव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन and adherence to rule of law. Now the second part comes, what is the significance of constitutional morality for public servants, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. Now the significance of constitutional probity, here it will come morality. The significance of constitutional morality for public servants: impartiality and integrity, no favoritism. What is impartiality? Impartiality is mean, example, I belong to caste X, there are 2 people sitting here, one belongs to caste X which is SMS, that of mine, the other belongs to caste Y, but here the person belonging to caste Y is right in a particular matter. So here I have to be impartial, that though this person is not from my caste, but if he or she is right, I have to take his or her favor, है ना. So no favoritism, like favoritism as a human sentiment, the people belonging to my caste will be more favorite to me as a general human sentiment, but here I have to show no favoritism, I have to take favor of that person which is right. So impartiality and integrity. Second is using public money honestly. What does constitutional morality says? Constitutional morality says that no corruption, no cheating with public money, and if this constitutional morality is inculcated in our mind in a very good way through civil education as well as adherence to the rule of law, then it will help us to use the public money honestly, like not using public money for our own expenses, not using the vehicle given to me by virtue of me being a public officer, not using that vehicle for my family functions, for my family weddings. So this is using public money very honestly. Third is ensure inclusion and dignity. Inclusion and dignity are the 2 aspects of constitutional morality. Inclusiveness, equality, dignity of a person should be respected. So here public servants should always try to inculcate people belonging to marginalized section like tribals, like women. There are many women awareness programs, there are many tribal awareness programs, like what are their rights, what are the schemes related to them. So this is the thing, ensure inclusion and dignity. Fourth is evolving rationally in innovation, for example tech friendly. Now we always see we always hear about our bureaucratic system, that it is very stubborn thing, what is written in law will just stick to that. But constitutional morality says that every matter should be solved in a constitutional matter, in a constitutional framework and constitutional boundary, which means that every matter should be solved. So if it is related to innovation, so we must encourage innovation in bureaucracy also. Example, नई नई टेक्निक से डिजिटली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, so digital innovation should be allowed and should be encouraged in bureaucracy also. So which means evolving rationally and innovation. Now second comes the role of constitutional morality in good governance and accountability. Accountability means जवाबदेही. For example,
if I'm in charge of a particular thing, I'm a public officer and I'm in charge of making a particular certificate, and I'm not making it for a particular person, so he or she has right to ask me that why are you not making this certificate of mine, और वहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा. So accountability means this. So role of constitutional morality in good governance and accountability is like equity, inclusiveness. Where there is equity, there will be good governance, because no one will be left behind. Where there is inclusiveness, there would be good governance. No one will be left behind. Like all the tribals, all the women, all the people belonging to vulnerable sections of the society, they have to be taken care of. Like the people standing at the last position in the line, he or she has to be taken care of. इसका example हम affirmative actions दे सकते. People belonging to certain caste or people belonging to socially and educationally marginalized or backward classes, they have been given the benefits of affirmative actions as an example of equity and inclusiveness. Second is transparency and openness. What is transparency? As a public officer, if I am doing something, any of the citizen can ask me until and unless it does not hurt the sense, it is not any sensitive information. So transparency and openness. इसका एग्जाम्पल है सोशल ऑडिट्स एंड जेम प्लेटफॉर्म. मान लीजिए एक कोई डैम बना है हमारे एरिया में, सो पीपल कैन आस्क कि इसमें कितना खर्चा हुआ, क्या ये खर्चा सही हुआ है, क्या सही क्वालिटी का सामान आया है, जो सामान लिखा गया है क्या वही आया है. सो देयर हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी इन ओपननेस. सो सोशल ऑडिट्स आर, मान लीजिए हमारे यहाँ एक डैम बना है, सो पर्टिकुलर रिनाउंड पीपल ऑफ द सोसाइटी, बीट द government teachers in that particular area, be it social workers, educated people, they form a group और वो social audit करते हैं सब चीज़ों का कि क्या चीज़ें सही से हुई है या नहीं. जैम प्लेटफॉर्म इज़ एक जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट जो साइट्स होती है जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं. जैम प्लेटफॉर्म इज़ अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म. मान लीजिए मेरा एक गवर्नमेंट ऑफिस है, मुझे मान लीजिए पोडियम खरीदना है, तो मैं एक ह्यूमन हूँ. अब मैं कहाँ से पोडियम खरीदूँगी? किसी दुकान से खरीदा, मान लीजिए मेरा रिश्तेदार निकला, तो आई विल बी क्वेश्चन कि क्या उस इंसान की मेरिट थी कि मैंने उससे पोडियम खरीदा. तो ये सब चक्कर ख़त्म किया सरकार ने जैम प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया कि सरकारी चीज़ों की खरीदारी जैम प्लेटफॉर्म से होगी, जहाँ पर हमें जो हम अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, मैंने डाला मुझे चाहिए एक पोडियम, तो वहाँ पर वेंडर्स आ जाएंगे. मैंने अपनी स्पेसिफिकेशंस डाली, इस 3 फीट का पोडियम चाहिए, इतनी चौड़ाई का चाहिए, कलर वाइट चाहिए. मैंने अपनी स्पेसिफिकेशंस डाली और जिन वेंडर का प्रोडक्ट इस मेरी स्पेसिफिकेशन से मैच करेगा, उन वेंडर्स के मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे. देन दे विल फील द टेंडर, और जो टेंडर वाली प्रोसेस होगी, जो हमारी ऑफलाइन प्रोसेस होती है, वो वैसी कंप्लीट होगी. तो ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस. थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इज एन एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एज वेल एज दी अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड लोकपाल. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज लाइक कि मान लीजिए पोडियम खरीद के मेरे ऑफिस में आ गया, एक कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ने RTI डाल दी कि ये पोडियम कितने का आया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपने मांगे थे, कौन कौन से वेंडर ने आपको दिया है और आपने कौन सा वेंडर चूज़ किया, ये मुझे बताइए आप. तो मेरी जवाबदेही है कि मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ पब्लिक ऑफिसर. मेरे इस पोडियम खरीदने का जो पैसा जाएगा वो पब्लिक मनी है. सो ये RTI हम फाइल जो करते, तो इट बूस्ट अकाउंटेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट सिस्टम. फोर्थ इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मतलब हम ऐसे गवर्नेंस करें जिसमें सिटीजन्स आर एट द सेंटर, नॉट द ब्यूरोक्रेट्स आर एट द सेंटर. एग्जाम्पल जन सुनवाई. जन सुनवाई इज़ ए लोकल कोर्ट यूजुअली कलेक्टर्स लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स लगाते हैं, जहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व होती है कोर्ट के बाद, ताकि कोर्ट में बार बार तारीख का आना जाना उसमें, और कोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती है. सो जन सुनवाई इज़ ए काइंड ऑफ लोकल कोर्ट जहाँ पर DM जितना जल्दी हो सके मैटर को समझते हैं, सुलझाते हैं और फिर कोई चीज़ अवॉर्ड करते हैं उसमें. जन सुनवाई हो गई. सर्वोदय, अंत्योदय. सर्वोदय मतलब सभी लोगों का विकास या डेवलपमेंट एक साथ. अंत्योदय मतलब द पीपल इज स्टैंडिंग लास्ट इन द लाइन शुड बी टेकन केयर ऑफ. सो दिस इज द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी
says that the public money should be used honestly, so we need to plug the leakages in between. जिसके लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT स्टार्ट किया, जहाँ पे बहुत सारे लीकेजेस कम हो गए हैं, डायरेक्ट जो सरकार की स्कीम का पैसा है हमारे अकाउंट्स में आता है, तो बीच के जो भी स्टेजेस पे लीकेजेस होते हैं वो सारे ख़त्म हो गए, कम पड़ गए हैं. 6th is compassion, which means emotional intelligence. सिटीजन देयर शुड बी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का एक पार्ट है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, है ना. और हम जब इसको गुड गवर्नेंस में लाना चाहेंगे, सो द ऑफिसर नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड इमोशनल क्वेश्चन, यानी EQ अच्छा होना चाहिए उस ऑफिसर का. इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है स्माइल योजना जो है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज. इनमेट्स रन कैफेज है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, जहाँ बच्चों से गलतियाँ हो जाती है. मान लीजिए टीन एज में गुस्से में आ गए, कुछ अपराध कर दिया, बट वो बच्चा है नहीं ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट का, बट गुस्से में आके अपराध हो गया, तो उन लोगों को कुछ सारे वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है. कैफ़ेज़ में डिशेस कैसे बनाना है, ये कि आप एक कैफ़े खोल लीजिए यहीं पे, तो जो भी कोर्ट के विजिटर्स हैं मान लीजिए वो आपके यहाँ पर खाना खाएंगे, तो आपकी कमाई होगी, और वो जो बच्चे हैं वो मीनिंगफुली इंगेज्ड रहेंगे काम में, तो उनका दिमाग और किसी गलत दिशा में नहीं जाएगा. तो ये इमोशनली इंटेलिजेंस है कि हाउ टू यूज़ योर इमोशन रैशनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन द कैपेसिटी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर within the constitutional limits. 7th is upholding human rights. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का एस्पेक्ट है अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, और अगर ये हम गवर्नेंस में डालते तो हमारी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इसमें है, अभी हमारे रिसेंटली मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया है एक लॉ ने, तो ये अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है कि अ पर्सन हैज़ टू वो कैरी अदर पर्सनस वेस्ट एक्सक्रीटा, so it is somehow harming that person's dignity. So this act has banned manual scavenging. So this is the thing ki how constitutional morality is very helpful in good governance and accountability. अब इस क्वेश्चन में I haven't given the introduction part as well as conclusion part because वो first में मैंने आपको template बता दिया कि कैसे लिखना है. अब सभी क्वेश्चन में हम यूजुअली बॉडी का पार्ट ही डिस्कस करेंगे, एंड इंट्रोडक्शन एंड जो कंक्लूजन है आप धीरे धीरे जब आंसर राइटिंग की ओर बढ़ेंगे, आप आंसर राइट करना जब सीखेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि कैसे कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन लिखा जाता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Karl von Clausewitz once said, war is a diplomacy by other means. Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict. Now, what is this question saying? There is a person who said, war is the diplomacy by other means. What is diplomacy? Diplomacy means managing relationships with the other countries. So, war is like war is the means of managing relationships with other countries. This statement is given by a person, but the question is asking critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict. आज के समय में जैसे रशिया यूक्रेन रेड सी क्राइसिस और द मिडिल ईस्ट वाला थिंग, सेंट्रल एशिया वाला थिंग चल रहा है, तो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल अपहीविल या कॉन्फ्लिक्ट के समय में ये जो स्टेटमेंट है कि वॉर इज द डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल say that yes, war is the diplomacy by other means war is the means of managing relations with the other country, and then in the second part of the question we'll critically analyze this statement that what are the drawbacks of wars and why war should not be fought. So first part, war a diplomacy by other means. So war is the coercive diplomacy. Coercive diplomacy means by using force. By using force we manage our relationships with other countries. There is country X, there is country Y. X is more powerful country, Y is little less powerful country. If country X wants particular thing to be done with Y, and if Y says no,
देन कंट्री एक्स विल फाइट, शो इट्स फोर्स ऑन वाई, वाई को हराएगी और अपना काम करवाएगी. सो coercive diplomacy, war is the synonym of coercive diplomacy. Now टेरिटोरियल डिप्लोमेसी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा रशिया यूक्रेन वाला वॉर, चाइना की जो असर्टिव डिप्लोमेसी, असर्टिव टेरिटोरियल डिप्लोमेसी ऑफ 9 लाइन की, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग. एंड हमारा अभी जो इज़राइल वाला पार्ट था, इज़राइल वाला वॉर था, वो भी कहीं ना कहीं टेरिटोरियल डिप्लोमेसी से रिलेटेड था. थर्ड, why war is the means of diplomacy? Because of hybrid warfare, blurring lines. अब वॉर कन्वेंशनल तरीके से नहीं लड़े जाते. कन्वेंशनल वॉर्स क्या होते थे, पहले बहुत पहले तलवारों से लड़े जाते थे, फिर टैंक्स बंदूक इनसे लड़े जाते. आजकल वॉर डिजिटली लड़े जाते. डाटा इज़ द न्यू ऑयल. हमारे एम्स पे भी के डेटाबेस पे भी अटैक हुआ था. सो अभी हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, स्पेस वॉर्स लड़े जाते हैं. So this is the thing कि hybrid warfare, blurring lines between the different equipments which are used in wars. So therefore war has become a new means of diplomacy. There are proxy wars, example Cold War era, जहाँ पर as such रशिया एंड सो कॉल्ड यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कोई वॉर नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, बट प्रॉक्सी वॉर चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिकल पैटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द इकोनॉमी एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन दोज टू कंट्रीज. अमेरिका में कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन था, यूएसएसआर में हमारा सोशलिज्म था. सो इकोनॉमिकली दे वर फाइटिंग वॉर, देर वॉज नो कन्वेंशनल वॉर गोइंग ऑन. तो वॉर के बीच की जो ये चीज़ें लाइंस ब्लर हो रही है क्योंकि इकोनॉमिकल वे में दे आर फाइटिंग वॉर. सो इट वॉज अ प्रॉक्सी वॉर. वो डिप्लोमेटिक चीज़ थी कि किस देश की का मोड ऑफ प्रोडक्शन बेहतर है. सो इट वॉज ऑल ऑफ अ डिप्लोमेसी. सो दिस प्रॉक्सी वॉर वॉज द मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी. देन नेगोशिएशन डिप्लोमेसी, वॉर इज़ अ नेगोशिएशन डिप्लोमेसी. दो कंट्रीज़ वॉर पे है, जिस कंट्री के रिलेशंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छे हैं उसका नेगोशिएशन पावर उतना ज़्यादा होगा और चाहे बिना लड़े वो वॉर जीत जाएंगे. सो इट इज़ द नेगोशिएशन डिप्लोमेसी. इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल बैटल ऑफ प्लाजी. बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में बोला जाता है, बैटल ऑफ प्लाजी वॉज ऑलरेडी वोन बाय ब्रिटिशर्स इवन बिफोर इट वॉज फॉल्ट, क्योंकि उनका नेगोशिएशन बहुत अच्छा था. नेगोशिएशन विद द इंडियंस जो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए थे जिन इंडियंस को. So this is the thing, negotiation diplomacy. अब now we have to give the critical analysis कि what is bad about this thing. हम भले कितना बोल रहे war is the means of diplomacy but we face human sufferings. जिन लोगों की कोई गलती नहीं है वो लोग मरते हैं. वॉर होता है दो सेनाओं के बीच में और अगर मैं और थोड़ा बोलूँ तो दो सरकारों के बीच में, बट जो जो दो बॉडीज़ दो पर्टिकुलर कंट्रीज़ चला रही है उनकी आइडियोलॉजीज़ के बीच में होता है और यूजुअली उसको लड़ती दोनों कंट्री की सेना है. बट ह्यूमन सफरिंग्स नॉर्मल और कॉमन पीपल की होती है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क अबाउट वॉर्स, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं होती है. देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशंस आया था. इज़राइल का जब से शुरू हुआ, रेड सी क्राइसिस शुरू हुआ तो वहाँ से जो स्विस कैनाल से चीज़ें नहीं आ पा रही थी तो उसके प्राइसेस बढ़ गए थे. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है पूरी. सो यर डिस्टर्बिंग सप्लाई चेन्स. देन थर्ड इज वीकेंड मल्टीलेटरलिज्म, बायपोलर वर्ल्ड. फिर से हम एग्जांपल लेंगे कोल्ड वॉर वाला. उस समय बायपोलर वर्ल्ड हो गई थी और बायपोलर वर्ल्ड मतलब दो पावरफुल कंट्रीज हु आर एट वॉर, उनके दो ग्रुप्स बन जाते हैं और जितनी भी छोटी मोटी कंट्रीज है वो कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और पूरा विश्व दो भागों में बढ़ जाता है. बायपोलर वर्ल्ड हो जाता है जब एक वॉर होता है. छोटा सा एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन भी बायपोलर वर्ल्ड कैसे क्रिएट कर रहा था. जो भी कंट्रीज थी कुछ रशिया की साइड पे थी, कुछ थी
यूक्रेन जो विच वॉज सपोर्टेड बाय यूएसए, तो जैसे नेटो वाला ग्रुप पूरा यूक्रेन की साइड पे था, बट इधर जो CSO वाला ग्रुप था वो रशिया की साइड पे था। जो सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली जो इकोनॉमी फॉलो कर रहा है आज भी, वो रशिया की साइड पे था। इंडिया वॉज एक्सेप्शन, इंडिया बीच में खड़ा था। सो वही है, जब भी वॉर होते हैं मल्टीलेटरलिज्म वीक होता है, बायपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, दो पोल्स क्रिएट हो जाता है, आप या तो इधर के हैं आप इधर के हैं। सो दिस इज द थिंग। न्यूक्लियर रिस्क्स बढ़ जाती है आजकल बहुत। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनके पास जो वॉर पे जाती है उनके पास न्यूक्लियर या मिलिट्री रिएक्टर्स होते हैं, तो न्यूक्लियर रिस्क्स बहुत बढ़ जाती है कि कोई भी किसी भी टाइम पे न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सकता है। दो मोस्ट ऑफ द, जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना वॉर हो रहा है, इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल है। दो इंडिया की पॉलिसी में भी नो फर्स्ट यूज़ और चाइना की पॉलिसी में भी नो फर्स्ट यूज़ है, बट वी नेवर नो कि न्यूक्लियर रिस्क कब बढ़ सकती है। इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज होते, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल एंड वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल, तो रिस्क बढ़ जाती है कि न्यूक्लियर चीज़ें यूज़ की जा सकती है। फिफ्थ इज टेक वॉरफेयर, ह्यूमन हेल्थ डाटा। वही है, आज के ज़माने में डाटा इज़ द न्यू ऑयल, और सिर्फ वॉर कन्वेंशनली नहीं लड़े जा रहे, डिजिटली भी लड़े जा रहे हैं। सो जो मान लीजिए एम्स के डेटाबेस पे चाइना ने हमारे अटैक किया था रिपोर्ट्स के अनुसार। सो जो हमारे लोगों का हेल्थ डाटा है वो उनके पास चले गया, तो ये हमारे लिए बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है। अगर हमारे देश के लोगों का हेल्थ डाटा हमारे एडवर्सरी के पास जा रहा है, तो वो कोई भी बायोलॉजिकल वेपन क्रिएट करके हमारे देश में अशांति फैला सकते हैं। सो हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। जो टेक वॉरफेयर जैसे जैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं, नई नई रिस्क्स हमारे सामने आती जा रही है। 6 डिस्टर्ब्स ग्लोबल पीस, ह्यूमन सफरिंग। 7th क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN। UN क्यों बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? कि अब UN का मेन काम ये होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। दो अभी तक कोई ऐसा सेट थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, बट जितना ग्लोबली डिस्टर्ब टाइम अभी चल रहा है, हर जगह हम कहीं ना कहीं लिटिल बिट वॉर्स एंड डिसहार्मनी देखते हैं। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक UN को क्वेश्चन करता है कि इनका एग्जिस्टेंस क्या है। ये है फिर भी ऐसी डिसहार्मनी चल रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो वॉर क्राइम्स लाइक जीनोसाइड्स और इनको पनिश करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है? क्योंकि अगर वॉर हो रहा है तो जीनोसाइड भी हो रहा है। सो व्हाट इज देयर एग्जिस्टेंस? देन देयर इज एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जांपल से इंडिया पाकिस्तान एक वॉर लड़ते हैं, इंडिया वॉर बिल्कुल वाइड टर्म्स पे लड़ेगा कि सेना वॉर लड़ेगी, हम उनकी सेना के लोगों को मारेंगे, हम उनके सिविलियंस को बिल्कुल नहीं मारेंगे। बट क्या पाकिस्तानी सेना बिल्कुल सेम वॉर लड़ेगी? नहीं। अब पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत काम करते हैं, बट हम तो सेना के साथ वाइड टर्म्स पे युद्ध लड़ेंगे ना। उनके नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट, वो लोग भी इस वॉर में शामिल होंगे। तो ये वॉर बहुत एसिमेट्रिक वॉर होगा। अगर हम पाकिस्तान से वॉर लड़ने जाते हैं तो चाइना भी कहीं ना कहीं वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। सो इट विल बी वेरी एसिमेट्रिक वॉर। एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ द टेररिज्म and non-state actors' participation in that particular war. So this was the body. So where we have seen ki how war is a means of diplomacy, and we have given the critical analysis of this statement also. Our next question is, keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of developmental projects in ecologically sensitive border areas of the country. इस क्वेश्चन का ये मतलब है इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज जो है हमारी कंट्री के, वहाँ पर जो हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इनके क्लियरेंस में जो एथिकल डायलामाज है, आप उन सबको डिस्कस करो कीपिंग इन माइंड द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. So why we have to keep in mind national security of the country? Because of these reasons. Because we have hostile neighbors. China one side, Pakistan different side. China 9-dash line covering पूरा साउथ का पार्ट. सो वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स, इसलिए हमको सिक्योरिटी कंसर्न्स ध्यान में रखना है.
वी हैव पीपल पेनिट्रेशन, बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, नेपाल से हमारे यहाँ लोग आते हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वी हैव ओपन एंड फ्रेजाइल बॉर्डर्स, तो इजीली पीपल पेनिट्रेशन हो जाता है। वो यहाँ आके हमारी जनसंख्या ऊपर नीचे कर देते हैं। हमारे यहाँ का जो जहाँ पर मान लीजिए कि इतने पर्टिकुलर लोग इतने परसेंटेज ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो दूसरी कंट्रीज से जो लोग आते हैं वो हमारे यहाँ की ये जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है वो बिगाड़ देते हैं। So these are the reasons why we need to keep national security in our mind. Now let's see on the what are the controversies and ethical dilemmas related to the ecological clearances of the developmental projects. So we need to see security versus ecological responsibility. मान लीजिए बॉर्डर एरिया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव और बहुत हॉस्टाइल नेबर है, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हमें वहाँ पे देखना है कि सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि उस एरिया में मान लीजिए हमने बड़ी बड़ी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बट वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल चार धाम प्रोजेक्ट, जो हमने चार धाम के रोड्स वाइडन किए हैं ताकि हम ट्रूप्स का मशीनरी का मूवमेंट इजीली करा सकें बॉर्डर एरियाज़ में, बट उन चार धाम प्रोजेक्ट के बाद से, रोड वाइडनिंग के बाद से हमें कितने सारे इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स फेस करे, लाइक चमोली लैंडस्लाइड, लाइक जोशीमठ में जो ज़मीन टूटने वाला या ज़मीन सिंकिंग वाली जो चीज़ हुई थी। सो चार धाम प्रोजेक्ट में हमारा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न तो देखा ही गया, साथ ही साथ इकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं उस चीज़ के। सेकेंड एथिकल डिलेमा इज सिक्रेसी वर्सेस प्रोसीजर। मान लीजिए मुझे एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, तो मुझे वो क्लियरेंस लेना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। बट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अगर मैं EIA कराऊँ, न्यूज़ में लाऊँ उस चीज़ को, तो मेरे एडवर्सरी को तो पहले ही पता चल जाएगा कि भाई मैं एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हूँ। सो वेयर इज़ द सिक्रेसी, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहना चाहिए। हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग, इट हैज़ टू बी वेरी सीक्रेट। सो यहाँ पर सिक्रेसी वर्सेस जो प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, लाइक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, विच शुड बी गिवन प्रायोरिटी। सो दिस इज द एथिकल डिलेमा, क्योंकि मान लीजिए हम सिक्रेसी को प्रायोरिटी देते तो भी हम सही है, हम EIA को प्रायोरिटी देते तो भी हम सही है, क्योंकि इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। सो दिस इज द एथिकल डिलेमा। थर्ड एथिकल डिलेमा इज नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन सिक्योरिटी। अब अगर हम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो पीपल डिस्प्लेसमेंट होगा, और यूजुअली बॉर्डर एरियाज़ में ट्राइबल लोग रहते हैं, लाइक लद्दाख, उत्तराखंड की जो ट्राइब्स है, अरुणाचल की जो ट्राइब्स है। सो ट्राइबल एरिया होगा और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा। So human security, the people who are displaced from their homes are always vulnerable. So human security, displaced people को menial jobs में जाएंगे, वो स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग के शायद शिकार बन सके। सो ऑलवेज देयर इज़ अ डिबेट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी वर्सेज ह्यूमन सिक्योरिटी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भी हम हमारे देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, बट उसी नेशनल सिक्योरिटी में हमारे देश के कुछ लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी खुद खतरे में आ रही है। सो लाइक where we have to stand. Fourth is sovereignty versus global commitments. For example, India has made several global commitments for protecting nature, for protecting ecologically sensitive areas. अब वैसे ecologically sensitive areas बहुत सारे हमारे border areas पर आते हैं, से फॉर अरुणाचल से सिक्किम। तो अब हम कहाँ पर खड़े, हमारी सोवर्निटी का हम स्टैंड लें कि हमें हमारे देश की रक्षा के लिए यहाँ पर डेवलपमेंटल एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, या हम ग्लोबल कमिटमेंट्स का स्टैंड लें कि नहीं, ग्लोबल कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए हम हमारे सिक्योरिटी एज वेल एज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पीछे की तरफ रखेंगे। सो वेयर वी नीड टू स्टैंड। देन कम्स सिक्योरिटी विद सस्टेनेबिलिटी। मान लीजिए हमने सिक्योरिटी तो दे दी बॉर्डर एरियाज पे, अच्छे से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी आज हमने बना दिया, चार धाम का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, बट सस्टेनेबल नहीं है ना। आज की जनरेशन को जैसे रोड वाइडन हुई तो टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बट ये सस्टेनेबल है कि नहीं,
इस बार आज की जनरेशन के लिए इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट जब इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स दिखेंगे, जब जोशीमठ जैसी चीज़ें होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, लैंडस्लाइड होगी, फ्लड होगी, जो पहले केदारनाथ फ्लड जो मंदाकिनी नदी में आई थी, सो अगर ये चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आज से 2-3 जनरेशन बाद क्या वहाँ कोई भी इंसान जाएगा? सो इंटर जनरेशनल सस्टेनेबिलिटी है या नहीं? आज तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से बढ़ रही है, बट व्हाट अबाउट द अदर जनरेशंस? दिस इज द थिंग. सो व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हियर? डू नो हार्म, डू नो हार्म. यहाँ पर हमने जो ह्यूमन सिक्योरिटी वाला एंगल देखा था, डिस्प्लेसमेंट वाला, दिस इज थिंग. इंटर जनरेशनल इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी वाला जो हमने एंगल देखा था. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का डॉक्ट्रिन है, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी से ही इसका मतलब होगा कि सिक्योरिटी के लिए क्या ये प्रोपोर्शनल है कि हम हमारे ही देश के कुछ लोगों को वल्नरेबल बना दें. पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, चार धाम प्रोजेक्ट में रोड्स वाइडन हुई, हम वहाँ पर गए, हमने बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल फेंका, हमने बहुत सारा पोल्यूशन किया, नदियाँ गंदी करी, हम तो आ गए वापस. इस चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है, बैकफायर, वो वहाँ के लोग अब सह रहे. पॉल्यूटर वॉज वी पीपल. पॉल्यूटर कौन थे? हम जो वहाँ घूमने गए थे, बट उसका हर्जाना कौन? जो वहाँ रह रहे वो भुगत रहे. सो वेयर इज़ द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल? दिस इज द थिंग. इसका कंक्लूजन क्या होगा? वी शुड इन्वेस्ट इन ग्रीन इंफ्रा, इन्वेस्ट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट इन ग्रीन इंफ्रा. सिविल इंजीनियरिंग में ग्रीन इंफ्रास कोर्सेज इंट्रोड्यूस, इंफ्रास मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए. देयर हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी वाले एरिया है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट होनी चाहिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में. देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, पीपल पार्टिसिपेशन, टेकिंग केयर ऑफ सेंसिटिविटी. जो बॉर्डर एरियाज़ के पीपल है उनको भी स्टेक होल्डर इन प्रोजेक्ट्स में बनाना होगा. टेकिंग केयर ऑफ सेंसिटिविटी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाए, सीक्रेसी बनी रहे. कंपनसेशन एंड रीस्टोरेशन फ्रेमवर्क्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, और पीपल जो वहाँ से डिस्प्लेस किए जाएंगे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी. रीजनल कोऑपरेशन मॉडल्स, adaptive management approaches with modifiable infra designs along environmental restoration post security requirement. फॉर एग्जाम्पल हमने एडेप्टेबल डिज़ाइंस के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेंगे कि मान लीजिए आज हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आज से 15 साल बाद वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, हमने डील कर लिया बहुत अच्छे से, तो क्या ये अडेप्टेबल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम फिर से बायोडाइवर्सिटी इंकरेजमेंट की ओर ध्यान दे सके या इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन की ओर ध्यान दे सके. सो ये सारे में से अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को हमको कंक्लूजन में डालना है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको कंक्लूजन में पुट कर सकते हैं और डील कर सकते हैं उससे. सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोट. अब जो आगे के 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें एक कोट रहेंगे, किसी फेमस पर्सनालिटी द्वारा बोले गए हैं वो, और उन्हें हमें आज की जो प्रेजेंट रेलेवेंस है उसमें उनको एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ द मेन थिंग कि प्रेजेंट रेलेवेंस उन कोट्स का क्या है. सो पहला कोट है, दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ. इसका ये बेसिक सा मतलब है कि मुसीबत के समय में जो शांत है, मुसीबत के समय में जो अपने दिमाग से काम लेता है वो मुसीबत को मुसीबत में डाल देगा, यानी मुसीबत से बाहर आ जाएगा. सो इंटरनल एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस ये सारी चीज़ें. सो हाउ आई इंट्रोड्यूस दिस? ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन मेंटेनिंग इनर काम अमिट्स एडवर्सिटी. एडवर्सिटी के टाइम पे जो इंसान इनर काम जिसके पास है ना, ही और शी विल विन द सिचुएशन. ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग इनटू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रेदर देन वीकनेस. हमारे पास कोई एडवर्सिटी आई है तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी. इट वीक बनने के बजाय हाउ टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इन दैट पर्टिकुलर एडवर्सिटी. सो दिस इज द थिंग कि ट्रू स्ट्रेंथ यही होती है. अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे फॉलो करेंगे? इंटरनल रेजिलियंस. इंटरनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? हम गिरे और हम फिर से उठ गए.
हम फिर गिरे, हम फिर से उड़ गए, हमने दौड़ना नहीं छोड़ा। सो चंद्रयान जर्नी, चंद्रयान 2 हमारा थोड़ा सा फेलियर की साइड पे था, बट नहीं, हम गिरे, हम फिर से उठे और हमने मोस्ट सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लॉन्च किया। सो दिस इज इंटरनल रेजिलियंस। Then comes emotional intelligence and self-control. Emotional intelligence means using your emotions rationally to your benefit, है ना, and controlling your emotions also. For example, sensitive policing. Say I am a police officer और एक mass movement हो गया है, बहुत भीड़ थोड़ी अनकंट्रोल हो रही है, तो वहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग फोर्स, जिसके लिए मैं परमिटेड हूँ, आई विल यूज़ माई, आई विल कंट्रोल माई इमोशंस एंड सेंसिटिव पुलिसिंग मुझे वहाँ पर देनी पड़ेगी। मेरे पास ट्रबल है, मेरे सामने बहुत बड़ा ट्रबल है कि मैं इस भीड़ को कैसे काबू करूँ, बट यदि मैं शांत रहूँगी, अपने इमोशंस को रैशनली यूज़ करूँगी, तो मैं बहुत सेंसिटिव तरीके से उस भीड़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो सेंसिटिव पुलिसिंग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत टफ चीज़ है, स्पेशली जब भीड़ के साथ हमें डील करना होता है। इफ़ेक्टिव एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग, उस ट्रबल के टाइम पे हम यदि इफ़ेक्टिव एंड रैशनल तरह से डिसीजंस को लेंगे, गुस्से में ना आकर या डर से बाहर आकर, हम मन को शांत करके दिमाग को काम रखकर अगर इफ़ेक्टिव एंड रैशनल डिसीजन लेंगे, तो हम ज़रूर उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल, सिविल सर्विसेज में ये क्वालिटी ऑफ द पर्सन बहुत ज़्यादा काम आती है, और क्राइसिस मैनेजमेंट में, जैसे कोविड का टाइम जो था, बहुत पैनिक सिचुएशन थी, बट हमारे यहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो पैनिक नहीं हुए और उन्होंने बहुत इफेक्टिव एंड रैशनल डिसीजंस लिए थे उस समय। फोर्थ इज इंस्पायरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर से खुद को मोटिवेट करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बार बार खुद को दे कि येस वी कैन सॉल्व दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अम्बेडकर, he was born on in a so-called in Mahar caste, which was so-called untouchables at that time. So despite facing discrimination, which was a trouble for him, which is trouble for everyone if a person faces discrimination, but no, he reinstilled his self-confidence and he came out of this trouble and became the one of the most intelligent scholars of the country. Then comes a निष्काम कर्म theory, कि ट्रबल में हो, फॉरगेट एवरीथिंग, क्या फ्रूट आएगा, क्या फल मिलेगा, जस्ट डू योर निष्काम कर्म। एंड जो गीता का वर्स है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जस्ट फॉलो दैट वर्स, कि ऑल द थिंग एंड रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, योर वर्क इज इन योर हैंड, योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स दैट वर्क इज इन योर हैंड, सो इन्वेस्ट इन दैट थिंग, है ना। Then comes a stoicism that focus on controllables, similar thing, focus on what can be controlled and only your work, your जो आपकी मेहनत है वो कंट्रोल की जा सकती है, this two things are in your hands, so focus on these things. Then transforming adversity into opportunity, if you have the quality to transform the adversity into opportunity, then definitely you can come out of any trouble in this world. Example, IAS Armstrong Palmer sir, he is an IAS officer in one of the states of Northeast India, and यहाँ पर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था एक ब्रिज या एक रोड बनाने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी मेम्बर्स, विद द हेल्प ऑफ द विलेज लोकल मैन, और खुद उन लोगों ने बहुत कम समय में, एक रात में शायद, एक पर्टिकुलर रोड बना दी थी। सो दिस इज द थिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट शुड कम इनटू कंक्लूजन? यू शुड कंक्लूड दिस आंसर बाय सेइंग समथिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, रीइंस्टिलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, गिविंग गुड लीडरशिप, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होगी, ही और शी विल डेफिनेटली बिकम अ गुड लीडर, एंड दिस ऑल आर वेरी यूजफुल इन एथिकल गवर्नेंस। Second question is, the greatest discovery of my generation is that human being can alter his life by altering his attitudes. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऐसे डील करना है कि आपका एटीट्यूड बदल कर, नेगेटिव से पॉजिटिव करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे पावर ऑफ पर्सनल एटीट्यूड, कि पर्सनल एटीट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है इन शेपिंग अवर लाइफ एंड सोशल चेंजेस। फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम गीता, पहले अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था, उसको लग रहा था
कि भले ही युद्ध यहाँ पे सही हो पर हम अपने ही भाई बंधु को मार के क्या करेंगे। जब लॉर्ड कृष्णा ने उसे गीता का ज्ञान दिया तो उसका एटीट्यूड, उसके अंदर इंटरनल चेंज आया। इंटरनली एटीट्यूड में ये चेंज आया कि तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, यू आर अ वॉरियर एंड फाइटिंग वॉर्स इज योर धर्म, योर ड्यूटी, है ना। सो इंटरनल एटीट्यूड चेंज आया अर्जुना में, which changed the future course of his life. This is the thing. Then second comes self transformation. Self transformation means internal attitude, transforming your negative or vulnerable attitude into the strongest one. Here the fantastic example is Dr. APJ Abdul Kalam's story for nation service. He was born in a very small village and he was not from a very decent economically decent family, but he transformed himself and became the the president of India, and has also given so much in the national service. Then attitude, you must have the attitude of self growth attitude. Very famous example, Malala Yousafzai. She belonged to Pakistan, and she belonged to that area of Pakistan which was under Taliban control at that time, and under Taliban's influence at that time, and where girls were not allowed to study. But no, she stood for her. At that time it was felt that she stood for herself, but today it is being felt that she stood for every girl there, because of her all the girls are getting education in today's date. So there you must have the attitude of self growth, where you have to stand for yourself, you have to stand for your own growth. Then comes the attitude of balancing personal and professional life. Like these attitudinal change of self growth has not only changed Malala's life but also the life of other girls there. So these little attitudinal change brings very happy and big changes in the rest of the life. Then comes the attitude of balancing personal and professional life. Sudha Murthy ma'am is the fantastic example here. Why? Because when female has to work, so females have double burden. First, the burden of household work as well as the burden of office work. So usually a working woman is judged whether she is doing both the work properly or not. So Sudha Murthy ma'am has shown how to change your attitudes, how to bring your attitude to the benefit of balancing personal as well as professional life. If a working woman is doing good at both fronts, she will be rewarded with social praise. But say if she is doing good at professional life and not at personal, but and also good at personal life but not at professional, so everybody will taunt her. So this is the thing, attitude of balancing personal as well as professional life. Then comes the attitude of consistency and persistence. Example, ISRO journey, kitna how much failure we have faced, but we have grown fantastically. Established in 1969, today we are launching very successful projects. So consistency and persistence, ISRO is the example. Attitude of self-belief, MS Dhoni. He was selected as ticket collector, but he had self-belief that he clearly knew what he wants to do and what he can do. So at that time, quitting a government job of ticket collector was a very big thing, but he quitted it and he had self-belief that he would do something. So this little attitudinal thing of self-belief, now see where he stands. Attitude of resilience. Think about acid attack and rape survivors, how much traumatized they are, but they have the attitude of resilience. I am forgetting the name of that particular lady, but the movie Chhapak is based on the story of particular rapes acid attack survivor. I am forgetting her name. See her resilience. She was attacked with acid, and instead of hiding her face and locking herself into a room, she fought many cases in Supreme Court to ban the open selling of acid, so that now onwards no other girl like her has to face the acid attack. So it is the resilience. ठीक है, बुरा हो गया हमारे साथ, we'll bounce back and we'll fight again. So this is the resilience of attitude of resilience. Many rape survivors have joined NGOs where they fight against prostitution. So this is the attitude thing. Embracing that, then the attitude of embracing the differences.
here we can take the example of LGBTQI community. It is the fact that difference between the genders exist. Now the attitude of embracing that difference makes the whole change. Seeing these differences through negative lens will only harm this community. No one will be at harm, only this members of this community will be at harm, that they will be looked upon in a discriminated way. But the moment these people start enjoying the embracing the differences between the genders, they will be able to enjoy their free will. So this is the attitude of embracing the difference makes difference here. Then comes a strong willpower and self-confidence attitude. It is very important for a student life. Students must have self-confidence and a strong willpower that yes, we can do this thing. This rational decision making attitude, attitudes of making rational decisions. For example, avoiding emotional traps. There is a problem related to certain class of people that they feel very difficult to say no to someone. So because of emotions connected there, so there has to be rational decision making. There has to be an attitude of rational decision making where you need to say no, you have to say no, because this attitude of not saying no can land you in very big problems. So this is the thing. Other is female changing their attitudes toward themselves. Initially it was thought that females are fit for or suitable only for household works, but now females themselves have started changing their attitudes towards themselves, that no, we are not only fit for household work, we are the creatures which can do both household as well as professional works. And see how women's life has changed now. There was time that women didn't used to step even a single step out of their home, and now see women are going to space, women are going everywhere. So this is the thing, a little attitudinal change brings very big differences in the life. Now the question arises, how to bring such changes, attitudinal changes. So first is the self reflection, first is the self introspection. Look what your attitude is. Is my attitude negative? Is my attitude very questioning? Is my attitude very subtle? Is my attitude very powerful and positive? So first step is the self retrospection and self reflection. Then comes the accepting criticism. For example, someone says that you are a very negative person, so don't get angry on that person, accept it. If 10 people are saying that I am very negative person or I am very short tempered person, so might be that they are saying right. So accept the criticism and then self reflect also, that am I actually very angry or very short tempered person. Then invite feedbacks, that what do you feel about me, how did you feel when I handled that particular situation. Invite certain kinds of feedbacks. Then again self reflect. Then molding and evolving your vision and behavior based on feedbacks, based on rational criticism and self-reflection. Try to mold and evolve your vision and behavior. Usually people do meditation, they connect with spirituality to make their attitudes positive. So there are different tools to do this thing. So this can come and this can be altogether a new part, introducing a new part in the question which can fetch you good marks. And the final conclusion should be like a positive, have always positive outlook, and there are tools such as connecting with the spirituality and meditation to bring rational changes in the attitude.